So before going to the next topic, let us revise the what is reflection. Reflection, the bouncing back of light when the light falls on the polished surface and that light will reflect back in the same medium. And then we have done the two laws of reflection. One is angle of incidence is equal to angle of reflection, and second law is the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in same plane. So next we are going to start spherical mirrors. As the name suggests, spherical means there must be a sphere. एक sphere होगा. Let me tell you in a very simple way. आप suppose कीजिए आपके पास एक फुटबॉल है. फुटबॉल it is in a 3-dimensional. Okay. एक फुटबॉल है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, made up of glass material. So अगर हम उसका if this is the football in the 3 dimension, अगर मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन कट करती हूँ और इसको मैंने थोड़ा साइड में लिया, yes, I'll get the transparent part. और इसको अब हम क्या करते हैं, एक तरफ हम कर देते हैं पेंट, ठीक. And one more thing we can do. This is the portion which we have cut, and here I paint. So this becomes the mirrors. One of them is concave and one of them is convex. I'll tell you which one is concave and which is convex. Before that, spherical mirrors. The definition says it is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere. This is very important. Part of hollow sphere. जो mirrors आपके बनेंगे वो एक hollow sphere के part होंगे. और ये hollow sphere कैसा होगा बेटा जी? It is made up of glass. बिल्कुल transparent. उसके बाद कट करने के बाद पोर्शन को हमें इसको फिर एक तरफ में पेंट करना है. पेंट करने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. आई हैव टू मिरर्स, वन ऑफ देम इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स. अब कॉनकेव और कन्वेक्स की आप पहचान कैसे करेंगे? सी, दोनों साइड एक तरफ आप देख पा रहे हो. दिस इज सो आई हैव टू मिरर्स, वन ऑफ देम इज कॉनकेव एंड वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स. तो अगर आप जब हम इन मिरर्स को टच करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि एक पार्ट जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू विद माई हैंड, दिस इज कट पार्ट. सपोज करो मैंने ये पार्ट कट किया. अब मेरे पास ये जो मेरा हैंड है ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है. तो एक पार्ट जो होगा जो कॉनकेव वाला पार्ट होगा, तो कॉनकेव मिरर इज द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ गया होगा. और ये आप तब फील कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे व्हेन यू टच दिस मिरर्स. तो कॉनकेव मिरर इज द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड. ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ. व्हेन यू टच बोथ द मिरर्स, दोनों हाथ से टच करके आप चेक कर पाएंगे कि एक पार्ट जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा बच्चों? दिस वन, दिस इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये आपका पॉलिश्ड पार्ट है. तो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट एक तो आपको उभरा हुआ ऐसे फील होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ. तो दिस विल बी आवर कॉन्वेक्स मिरर. और जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट आपका अंदर की तरफ गया हुआ आपको फील होगा, दैट मिरर इज द कॉनकेव मिरर. We can write the definition here. You can repeat with me. Concave mirror is the mirror in which reflecting part is curved inward. This is concave mirror. And in convex mirror, the reflecting part is curved outward. Okay, and they both are the part of this hollow sphere. Okay beta ji, now it's your time to take out your pen and pencil with a notebook and make diagrams along with me. So first of all, as I told you, concave mirror in which the reflecting surface is curved inward. So अंदर की तरफ गया. So this is my concave mirror. And for the convex mirror whose reflecting surface or reflecting part is curved outward. अब reflecting part बाहर की तरफ उभरा होगा तो diagram will be like this. Here we will do our painting and this is our reflecting surface. Getting my point? So concave reflecting part, this is polished जहाँ paint किया है green color का. And if I make it like this, reflecting part बाहर उभरा हुआ है, my convex mirror, और यहाँ पर हमारा क्या है, पेंट हमने कोई भी कलर का किया हुआ है, so that light जो है वो आर पार नहीं जाएगी. And this is the
उस पॉइंट का विल ड्रॉ अ नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट एंड दैट इंसिडेंट रे विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल एंड बाय मेकिंग द सेम एंगल। लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के दैट लाइट विल बाउंस बैक और वो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम। क्लियर? So this is concave and this is convex mirror.